in that one. First one is the direct method is there. Direct method we have already completed this one. Direct method. Then second method that we completed in case of this one is the direct method के बाद देखे पहले factorization method. Factorization method. The third one that we have seen in case of limit is the rationalization method. Rationalization method. And fourth thing that we have seen in case of limit is the substitution method is there. Substitution method is there. All the four types we have already covered in that chapter limit. So in that one, सबको मालूम है अपने को क्या क्या करने का है. Direct method में if you apply the direct limit and we got the answer, it's okay. Now in case of factorization method, if you apply the limit, if the answer is of the form 0 by 0, then we need to factorize numerator or denominator. Then one common term is getting in numerator and denominator. Common term gets cancelled and apply the limit. You got the answer. Third one is the rationalization method. If the term containing square root terms, if the terms are in the square root, then we cannot factorize that one. Then by using rationalization method, we have to solve the equation. It is again of the form 0 by 0 is there. Okay. Now the fourth one, substitution method. It is again of the form 0 by 0. If by putting the direct limit, if we got the answer 0 by 0, then it is again undefined. So by using substitution method, we have to solve the given equation. So up till now, in limit, we have seen four methods of that one: direct method, factorization method, rationalization method, and substitution method. And on the basis of that one, we have taken few examples that are necessary and that are important one. So now we proceed to the next part of the limit. Okay. So what is the next part of that one? ये चार part important थे. उसके आगे और दो part important. फिर लिमिट खत्म. एकदम सिंपल है. लिमिट का बेसिक कैसा है? जब भी कैलकुलस स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए लिमिट आना जरूरी है. लिमिट आएगा तो कंटिन्यूटी आएगा, कंटिन्यूटी आएगा तो डिफरेंशिएशन. दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. एक दूसरे पे डिपेंड है. इसलिए सबका बेसिक लिमिट है. लिमिट कर लेना जरूरी है. डायरेक्ट अपन डिफरेंशिएशन नहीं स्टार्ट कर सकते, इसलिए इतना अपने लिमिट में डिटेल में देख रहे हैं. ठीक है. चलो तो अब जाएंगे अपन आगे की मेथड में. तो आगे है अपने पास नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट इट इज नेक्स्ट वन इज लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कंटिन्यूटी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट बिट एज फार एज कंटिन्यूटी इज कंसर्न्ड. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में So in continuity, a number of questions are based on that bits. Limits of exponential and logarithmic functions. Limits of exponential and logarithmic function. Logarithmic functions is there. It is important bit as far as continuity is concerned. Continuity में इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन ये कंसेप्ट पे बेस्ड है. कंटिन्यूटी भले बोर्ड में नहीं 11 में चलेगा, मगर 12 के जेई में तो है वो. तो इस अपने को भी देखना पड़ेगा एज फार एज जेई इज कंसर्न. तो देखो लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब सबका बेस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, ये दोनों का बेस लिमिट है. लिमिट के जितने कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी में तो पूरे यूज होंगे, डिफरेंशिएशन में कई जगह पे इसके कंसेप्ट यूज होंगे. तो पहला रिजल्ट है विदाउट प्रूफ वाला है. फर्स्ट रिजल्ट सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या? जब किसी फंक्शन में बेस में कांस्टेंट और पावर में फंक्शन, so it is said to be the exponential one. जैसे कि a raised to x, then afterward 2 raised to x, then afterward 3 raised to x, and so on. These functions are said to be the exponential function. What is the definition here? Here in the base there is a constant and power is a function is there. बेस में कांस्टेंट, पावर में फंक्शन. बेस में कांस्टेंट, पावर में फंक्शन. इसका अगर से उल्टा कर दिया अपन ने, जैसे फॉर एग्जांपल a रेज़ टू x का उल्टा कर दिए तो x रेज़ टू a हो जाता. इसका उल्टा करने से x स्क्वायर हो जाता. इसका उल्टा करने से x रेज़ टू 3. तो स्टूडेंट जहां पे कंफ्यूज होते हैं या दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, इसको बोलेंगे अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इट इज सेड टू बी द एक्सपोनेंशियल. तो एक्सपोनेंशियल में याद रखो बेस में कांस्टेंट रहेगा और पावर में फंक्शन. बेस में कांस्टेंट, पावर में फंक्शन. और ये जो फंक्शन है इसका उल्टा, इट इज सेड टू बी द पावर फंक्शन ऑफ दैट वन. ओके.
तो ये दोनों फंक्शंस में स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग इन दैट वन। सो लिसन केयरफुली, पावर फंक्शन में क्या डिफरेंस है? बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट, बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट, बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट एंड सो ऑन। और उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल में कैसा है? उल्टा है इसका, बेस में कांस्टेंट, पावर में फंक्शन, बेस में कांस्टेंट, पावर में फंक्शन, बेस में कांस्टेंट और पावर में फंक्शन, उल्टा है उसका। This function is said to be the exponential one and this function are said to be the power functions of that one. तो अब हमको ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट्स निकालने का है। We are interested to find out the limit of exponential function and logarithm function में तो कोई टेंशन नहीं है। फंक्शन log x to the base e और log x to the base 10 are said to be the logarithmic functions आते हैं। So see now what we have done in that one. तो हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। उसमें पहला रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट इसमें फर्स्ट रिजल्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x that is equal to कितना? log a is there, log a is there। अब कंडीशन ये है कि इसमें a क्या समझ रही है? greater than 0, a is not equal to 1 is there, a greater than 0 and a is not equal to 1 is there। Limit extends to 0, a raised to x minus 1 upon x is equal to log a is there। In that one, a should be positive 1 and a is not equal to 1। Condition is that तो ये अगर से नेगेटिव है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नीचे लेके लेना पड़ेगा और रिजल्ट नहीं आएगा आपको को, और a इक्वल टू 1 भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे log 1 हो गया तो दैट इज इक्वल टू कितना? 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो है यहाँ पे ये जो कंडीशन है a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, इस पे कंडीशन है। a पॉजिटिव इसलिए कि अपने को मालूम है लॉगरिथम जो फंक्शन है इट टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। अपन लॉग के टेबल्स में देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 2 3 एंड सो ऑन दिस वन। इसकी वजह से ये जो है ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये दो कंडीशंस इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका रिजल्ट log a, मगर ये log a कैसा है? इसमें a कैसा रहना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी फाइंड, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए क्योंकि a अगर से 1 हो गया तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसकी वजह से दो कंडीशंस बाजू में। अब इसी पे रिजल्ट ऐसा है, इस पे सेकंड नंबर निकालता हूं। चलो सेकंड नंबर ये रिजल्ट को हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो ये मैथमेटिक्स में ये याद रखो, मैथमेटिक्स में इससे पहले बताया स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज अ कांस्टेंट इन मैथमेटिक्स। These are called as a constant। स्टार्टिंग के जो वॉवेल्स है, वॉवेल्स मतलब अल्फाबेट्स ए से लेके तो ऐसे स्मॉल e अब तक, और उसके बाद e f लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट के जो जनरली यूज करते हो x y z, कभी कभी w से भी होता है w x y z, these are said to be the functions in that mathematics। ये याद रखो। इससे पहले बताया तो मैंने, ये थोड़ा बारीक हो गया तो अच्छे से बताता। देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स में अल्फाबेट्स को बांट के दिया वाला है। स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स रहेंगे, ये जो है अल्फाबेट्स, these are treated as a constant in mathematics। इसको क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट। और उसी प्रकार से जो लास्ट के रहते हैं w x y z, लास्ट के में से जो आएंगे इसको बोलेंगे अपन फंक्शंस इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर देखो e क्या है? स्टार्टिंग का वर्ड है, a से लेके e f तक, दिस वन ये e है स्टार्टिंग का अल्फाबेट, और ये x इज द लास्ट अल्फाबेट ऑफ दैट वन। तो ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। e क्या हो गया? कांस्टेंट, और x क्या हो गया? फंक्शन इज देयर, राइट है। इसी तरीके से a क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? फंक्शन से। तो e raised to x minus 1 upon x is equal to log e is there। तो सबसे पहले हम ये दो रिजल्ट देखेंगे, ये समझ में आएगा कंसेप्ट। मैथमेटिक्स में ये जो है स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स को अपन कांस्टेंट बोलते हैं फॉर अवॉइडिंग द कंफ्यूजन, और लास्ट के जो अल्फाबेट्स रहते हैं इट इज सेड टू बी द फंक्शंस इन मैथमेटिक्स। तो इस वजह से ये जो a है ये कांस्टेंट है और x क्या है? फंक्शन है। तो कांस्टेंट के पावर में फंक्शन, तो इट इज सेड टू बी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कांस्टेंट e है उसके पावर में x है, जब फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिमांड क्या है, क्या हम पहले सब लिख लेंगे फिर बाद में वन बाय वन देखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। चलो log e है तो सबको मालूम है log e की वैल्यू कितनी रहती है? दैट इज इक्वल टू 1 इज देयर, है ना। देखो जिसके बेस में कुछ नहीं है उसके बेस में क्या रहता? e रहता। लॉगरिथम ऑफ e द सेम बेस दैट इज इक्वल टू 1।
सेकंड रिजल्ट थर्ड रिजल्ट, limit extends to 0, limit extends to 0, 1 plus x upon 1 by x is equal to e is there. तो फोर्थ रिजल्ट है इसमें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, log of 1 plus x, limit extends to 0, log of 1 plus x divided by x that is equal to 1. So this is the last bit, last but one bit of limit. लिमिट खत्म होने पे अपना ये इस पे एक एक्सरसाइज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बताया मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके जो क्वेश्चन है, इसके जो कंसेप्ट है, दे आर ऑल यूज्ड इन कंटिन्यूटी चैप्टर्स एंड देन आफ्टरवर्ड few questions are in differentiation also, so see now. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ये बाजू की कंडीशन की जरूरत नहीं, छोड़ दो। तो कंडीशन क्या है, अपने को क्या रखना पड़ेगा कि तीन रिजल्ट क्या रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला, जैसे कि अपन इससे पहले एक रिजल्ट देखा था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin x by x is equal to 1, एक रिजल्ट देखे थे अपन। और एक रिजल्ट अपन ने देखा वाला है इसमें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan x by x is equal to 1. So in that अपन इसमें बोले थे कि इसमें 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्टेप बोलो, x कहां पे जाना चाहिए? 0 की तरफ, फर्स्ट स्टेप। फिर इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? x कभी होगा तो वो स्टेप की लेने की जरूरत नहीं है, मगर इन केस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x और x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसके बाद थर्ड स्टेप, you will have to adjust the angle of that one. यहाँ पे एंगल में एक साइन के एंगल में 1x है, तो यहाँ पे भी 1x है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। उसी प्रकार से tan में भी वही है। पहली स्टेप, x कहाँ पे जाना चाहिए? 0 की तरफ। दूसरी स्टेप, इसके डिवीजन में क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तीसरी स्टेप, इसका एंगल और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? सेम, तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। तो इसमें जैसे 3 स्टेप्स है, उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल में भी 3 स्टेप्स है। व्हाट यू टू रिमेंबर इन दैट वन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखो। सबसे पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। फिर जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, जैसे कि मैंने 2x ले लिया, 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सबसे बाद सेकंड स्टेप इसमें की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेकंड स्टेप ये है कि यहाँ पे -1 कंपलसरी होना, तो नहीं होगा तो अपन लाएंगे -1 + 1 एडजस्टमेंट करके। तो सेकंड स्टेप -1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को -1 की जरूरत है। और थर्ड स्टेप, इसमें जरा 4 स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है? डिवीजन में क्या होना? उसके x होना, नहीं होगा तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x करके अपन लाएंगे। 3 स्टेप हो गए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि यहाँ पर जो पावर में इसके है, जैसे कि 2x है, तो x का कोएफिशिएंट दिस वन 1 है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसा अगर से है तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, x से 0 की तरफ जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में -1 है, डिवीजन में x है। चौथी स्टेप क्या? दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे log 2 is there. Directly we can write here log 2 is there. Okay, चलो फर्दर एग्जांपल समझो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 5 raised to 2x -1 upon x is there. तो अब यहाँ पे क्या है? स्टेप्स देखो, 4 स्टेप। पहली स्टेप, यस, एक्सटेंड्स टू 0 है, ओके। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को -1 है, ओके। दूसरी स्टेप, इट इज फर्स्ट स्टेप, इट इज सेकंड स्टेप। नाउ डिवीजन में x है, इट इज द थर्ड स्टेप। नाउ व्हाट वी टू सी इन फोर्थ स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियल पावर में जो x है वो 2x है, और यहाँ पे सिर्फ कितना है? x है। तो चौथी स्टेप में क्या बताया मैंने? ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, इसका मतलब है यहाँ पे कहीं तो भी 2 और 2 की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये दोनों को सेम करने के लिए 2 और 2 की एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा करने से ये जो पूरा हो गया, इसके बेस में कितना है? कांस्टेंट कितना है? 5। तो ये क्या हो गया? log 5। ये पूरा हो गया log 5, और ये एडजस्टमेंट का 2, तो कितना हो गया? 2 into log 5 से है ना। ये गलत है, ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, log 5 into 2 है ना। कोई इसका log 10 कर देता है इसका, इट इज नॉट पॉसिबल इन दैट वन। तो ये क्या है? ये log 5 हो गया into 2, मतलब 2 log 5 से, right? 2 log 5 से। So this is the
स्टेप्स यू टू रिमेंबर हियर। आप समझो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, समझो क्वेश्चन कभी ऐसा आ गया कि काउंटर एग्जांपल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज़ टू x माइनस 3 रेज़ टू x अपॉन x इज देयर। चलो अब देखो, हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर हियर? 4 स्टेप्स। पहली स्टेप का लिमिट x टेंड्स टू 0 है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। चलो नाउ सेकंड स्टेप क्या बताया था? अगर से फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको -1 की आवश्यकता है, मगर आप यहाँ पे ना -1 है ना प्लस, मतलब यहाँ पे दोनों को, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दो एक्सपोनेंशियल, इसको भी -1 की जरूरत है और इसको भी -1 की जरूरत है। तो पहला काम हमको -1 + 1 कहीं से भी इसको लाकर देना पडेगा, कुठूनही आपल्याला त्याला आणून द्यावं लागेल, त्याच्याशिवाय पुढे जाणार नाही, है ना? लहान मुलासारखं कंप्लीट दिवसभर ते रडायला थांबत नाही तसं। आता बघा काय करू, यू टू एडजस्ट हियर -1 एंड +1, ये होगा -1 + 1 की एडजस्टमेंट। तो ऐसा करने से ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज़ टू x, एक -1 इसको दे दो, ये खुश हो गया। ओके, अब देखो -3 रेज़ टू x + 1, यहाँ से माइनस आगे से कॉमन निकाला मैंने, तो -3 रेज़ टू x आ गया और ये +1 को -1 कॉमन, राइट? दोनों का काम हो गया। ये -1 ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चले गया और ये +1 की एडजस्टमेंट करके ये -1 ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चले गया। और दोनों के डिवीजन में क्या है? x है, दोनों के डिवीजन में x है। तो अब क्या करेंगे बोलो? ये ऐसा है ना, टोटल फंक्शन ऐसा है, दोनों मतलब बीच में माइनस है, तो ये डिनोमिनेटर में x इसको जाएगा और ये डिनोमिनेटर में x इसको जाएगा और लिमिट बांट के देंगे। कैसे देंगे? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज़ टू x -1 डिवाइडेड बाय x, इसका डिनोमिनेटर में x और इसकी लिमिट बांट के बीच में माइनस, फिर से लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज़ टू x -1 अपॉन x इज देयर। ओके, ये क्या हो गया? देखो पूरे कंडीशन सेटिस्फाइड है, x 0 की तरफ जा रहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को -1 है, ये दोनों का पावर सेम है, इसके वजह से डायरेक्टली ये दिख रहा है, यस नजर आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा, इट इज नथिंग बट log 5 इज देयर। पूरी की वैल्यू कितनी होगी? log 5 माइनस, प्लस बता रहे हैं यहाँ पे काउंटर एग्जांपल, x 0 की तरफ जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, -1 है, दोनों का पावर सेम है, बिंदास वी कैन राइट है, यहाँ पे 3 है तो log 3 इज देयर। log का नियम, log 5 minus log 3 is nothing but log a minus b, log a by b is there. It is the result, it is the rule that you have to solve it. Okay, that's the rule. I guess on में तो इसमें कितने steps important है? There are 4 steps are there. X tends to 0 compulsory. If it is not -1 is there, you have to provide -1 to that exponential function. Then afterward in the denominator x is there, compulsory x is there. If it is not so, then divide numerator and denominator whatever may be according to condition, but you have to take an x here. Then you have to observe the coefficient of x in the power and the denominator are the same. ये चौथी स्टेप, ये अगर से सेम है तो डायरेक्टली यहाँ पे जो भी रहेगा वो लिख देंगे अपन log a, राइट है? ठीक है, चलो अगला एग्जांपल बता दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले सब्जेक्ट टाइप कर लेंगे क्या अपन? ठीक है, सब्जेक्ट बता दो, ये हो गया, ये और ये दोनों सेम है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके जो स्टेप्स है इसके भी वही है, और इसमें ये फर्क है कि यहाँ पे e आने से log e होने से इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी कुछ खास बात नहीं। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल इज समथिंग लाइक टू सी हियर नाउ। तो वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे, पहले काउंटर एग्जांपल्स, छोटे-छोटे एग्जांपल्स। करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, बाद में अपन उसको खेल लेंगे। चलो नाउ नेक्स्ट वन इज द बता, ऐसे मैसेज आएगा, ब्लर होएगा वीडियो,
मला वाटत नाही ब्लर व्हायला. नाही सर. हा ठीक आहे. अडकायले सर. बरेच लोकांना अडकायला का? दिसतंय सगळ्यांना व्यवस्थित? हो सर दिसतंय. ठीक. तर आता ये हो सर. ओके चलो. अब देखो हाउ डू यू यूज दैट रिजल्ट. ये रिजल्ट कैसे यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x और इसका रेसिप्रोकल 1/x, तो द वैल्यू इज इक्वल टू e. तो ये फंक्शन क्या होता है, इसमें भी स्टेप्स है कि यहाँ पे सबसे पहली स्टेप दोनों में कॉमन है, x टेंड टू क्या होना 0. ये जो थर्ड रिजल्ट बता रहा, तो ये दोनों सेम है, ओनली डिफरेंस इज दैट हियर log e comes, here log e comes, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. मगर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, log e की वैल्यू 1, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया e के फॉर्म में आ गया, वही स्टेप्स है, x 0 की तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन -1 कंपलसरी, डिवीजन में x, बट इन द पावर ऑफ e raised to 2x इज देयर, आई मीन here only x इज देयर. तो सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये 2 और ये 2 की एडजस्टमेंट. ऐसा करने से क्या होगा, ये पूरे की वैल्यू जो है, ये पूरे की वैल्यू हो जाएंगी log e इनटू कितना रह गया 2, तो log e कितना रहता 1, तो 1 into 2 दैट इज इक्वल टू आंसर विल बी 2. तो नंबर्स के फॉर्म में आएगा, और ये log इसमें log नहीं जाएगा, इसमें e होने की वजह से log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, और नंबर आएगा उसमें भी 2 3 4 जो भी आंसर है उसके साथ. बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों का रिजल्ट सेम है. इस वजह से इसको हम नहीं देखेंगे, आते हैं थर्ड की तरफ. So how many steps you have to remember here? कितने स्टेप याद रखने का है और कैसे कन्वर्ट करने का है क्वेश्चन को, है ना. कोई भी क्वेश्चन को ये फॉर्मेट में लाने का, तो उसका आंसर क्या होता है e. तो फॉर कन्वर्टिंग द प्रॉब्लम इनटू दिस टाइप, which step you have to remember here, see now. First step, x tends to 0, कॉमन है दैट वन, दोनों में ये कॉमन है. उसके बाद यहाँ कंपलसरी 1 होना, या अगर से 1 नहीं है तो सबसे पहले हम 1 लाएंगे, कॉमन वगैरह लेके कुछ तो भी करके उसमें 1 कॉमन लाएंगे. ये सेकंड स्टेप है ना, स्टेप का नाम लेता ये फर्स्ट स्टेप. इसके बाद 1 लाने के वास्ते ये तुम्हारी सेकंड स्टेप. और थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल 1/x रेसिप्रोकल ऐसा अगर से है तो इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू e इज देयर. फॉर एग्जांपल limit extends to 0 1 plus 2x raised to 1/x is equal to x आ गया. तो 2 मिनट में अपन कर सकते हैं. स्टेप के हिसाब से जाओ, पहली स्टेप एक्सटेंड टू 0 है लिमिट, ओके. दूसरी स्टेप में ऑलरेडी 1 है, ओके. अगर तीसरी स्टेप में यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे 2x है, तो ये फंक्शन का थोड़ा वाइड लिखेंगे, मतलब थोड़ा लार्ज लिखेंगे तो नजर आएगा. ओके, ऐसा क्वेश्चन था. तो पहली स्टेप बताने का, इसके थोड़ा वाइड लिखा, थोड़ा बड़ा लिखा, इसमें लार्ज. ये फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज ऑलरेडी देयर. अब थर्ड स्टेप में जो है यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1/x है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेके पावर की एडजस्टमेंट समझ के लो. वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट वन एंड वी हैव टू एडजस्ट द पावर ऑफ दैट टर्म. मतलब कैसा, सी एन नाउ ओनली वन मिनट देयर. Okay, so clear now.
So here it is 2x is there. This one. First we have to take on the reciprocal of that one, then we have to adjust the power of that one. Means what happens now? 2x का reciprocal 1/2x is there. देखो ये important step है. Reciprocal of 2x is a 1/2x is there. Now we have to adjust this 1/2x. अपने actual power में कितना है? 1/x है. मगर इसका reciprocal लेने के बाद कितना आया? 1/2x is there. So what? कैसा एडजस्ट करेंगे देखो. रेसिप्रोकल लेने के बाद 1/2x और अपने पावर में कितना है 1/x. तो कैसे करेंगे? इसका उल्टा 2/1. इसका उल्टा मतलब 2/1. 2/1 मतलब ये 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ आंसर कितना आ गया? फिर से 1/x इज देयर. मगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि ये इन शॉर्ट याद रखो, ये टर्म का रेसिप्रोकल और उसके बाद ये टर्म का रेसिप्रोकल मतलब x रख के x छोड़ के 2/1 इज देयर. तो ये 2 से 2 कैंसिल होके फिर से कितना मिलेगा? 1/x. एडजस्टमेंट है ना. तो ये पूरा कितना हो गया? इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी? लिमिट अंदर डालने के बाद ये होगा e और इसके पावर में कितना आया? इट इज नथिंग बट 2 इज देयर. e स्क्वायर इज देयर. आई थिंक नया है समझ में. चलो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेता हूं. बहुत से बच्चों कंफ्यूज दिख रहा है इसमें. कोई बात नहीं, और एग्जांपल काउंटर एग्जांपल लेता हूं. काउंटर एग्जांपल कैसे देखो, एक एग्जांपल है, अच्छे से वाइड लिखेंगे. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस 5x/3 का पावर 1/x. चलो थोड़ा अलग एग्जांपल है. तो हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर हियर? यू रिमेंबर 4 स्टेप. पहले एक्सटेंड टू 0, यस, ओके, फाइन. 1 is there, okay, fine. Second step. अब थर्ड स्टेप जो तुम्हारे समझ में नहीं आई थी पिछले एग्जांपल में, देखो थर्ड स्टेप क्या है? इसका रेसिप्रोकल. मगर यहाँ पे है क्या? नहीं है. इसके रेसिप्रोकल में कितना है? 1/x. तो हमको इसका रेसिप्रोकल, मराठी सांगते हिंदी में थोड़ा अवगत चाललंय. आपल्याला या टर्मचा रेसिप्रोकल घेऊन असा ऍडजस्ट करायचं की पुन्हा आपल्याला 1/x सुद्धा आला पाहिजे. म्हणजे बघा 5x/3 चा रेसिप्रोकल जर घेतला ना आपण, त्याचा रेसिप्रोकल येणार 3/5x. म्हणजे उलट कसा होईल इथे दाखवतो. 5x/3 चा रेसिप्रोकल म्हणजे 3/5x. पण आपल्याला ऍक्च्युअल पॉवरला किती आहे? 1/x आहे. तर म्हणजे याचा अर्थ आहे रेसिप्रोकल घेऊन पुन्हा पॉवरची ऍडजस्टमेंट करायचं. म्हणजे याचा पॉवरला काय ऍडजस्ट करायचं? रेसिप्रोकल तर आणला आपण, पण आपल्याला ऍक्च्युअल किती पाहिजे? 1/x होता पहिली दिलेल्या पॉवरला, आणि आला किती आपल्याला? 3/5. म्हणजे 3/5 चा पुन्हा उलटा म्हणजे किती? 5/3. असा केल्याने काय होणार बघा? 5 से 5 कटून जाणार, 3 से 3 कटून जाणार, पुन्हा किती येणार? 1/x. तर ही स्टेप महत्त्वाची आहे. पहिल्यांदा या टर्मचा रेसिप्रोकल घेऊन पुन्हा याचा ऍडजस्टमेंट करायची. अशी ऍडजस्टमेंट करायची की जे आपल्याला पहिले ओरिजिनल पॉवर मध्ये दिलेला आहे तो आला पाहिजे. याप्रमाणे त्याची ऍडजस्टमेंट करायची. म्हणजे इन शॉर्ट तुम्हाला जर लक्षात आणायचं असेल तर एवढं करू शकतो आपण. 5/3 चा उलटा आणि पुन्हा त्याचा उलटा, रेसिप्रोकल पुन्हा त्याचा रेसिप्रोकल दिसते. तर काय होणार बघा ना, ते जर मी असा घेतला लिमिट सगळे, त्याला लिमिट टाकतो 1 प्लस आणि हे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 असा जर केलं तर मला सांगा ही सगळ्यांची व्हॅल्यू किती झाली? एक्सटेंड टू 0 कडे आहे 1 आहे, याचा रेसिप्रोकल आहे, हे सगळ्यांची व्हॅल्यू एवढ्याची व्हॅल्यू किती झाली? दॅट इज इक्वल टू किती? e. हा पूर्ण काय झाला? e. सगळं झाला e आणि त्याचा पॉवर किती आहे? 5/3. आन्सर विल बी 5/3. So this one, it is important one. कितने स्टेप बताया इसमें भी? 3 स्टेप्स. x 0 की तरफ जाना चाहिए. कंपल्सरी 1 is there. If it is not so, then you have to provide this 1. Then afterward, reciprocal of that one. Reciprocal का साइड इसका कळाला? 5x/3 चा उलटा 3/5x आणि पुन्हा 3/5 चा उलटा 5/3. असं केल्याने हा पूर्ण आता हा रिझल्ट झाला e. हा पूर्ण काय झाला? e, कारण हे या रिझल्ट मध्ये आला, हे पूर्ण या रिझल्ट मध्ये कन्वर्ट झाला. त्याच्यावर किती झाली? e आणि त्याचा पॉवरला किती होता? 5/3. तर e raised to 5/3 चा आन्सर फॉर दॅट वन. It is the third result. Okay, ये हो गया third result. Now we proceed to the last result. How to use that one? अभी अपन देख रहे हैं कैसे यूज करेंगे, फिर उसके अपन एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देखेंगे कैसे कैसे दिए हुए हैं. ठीक है, पहले भी अपन 5 देख रहे हैं कितने स्टेप्स इंपॉर्टेंट है.
चलो चौथी स्टेप, चौथा रिजल्ट की तरफ चलो। तो चौथे रिजल्ट में क्या है देखो, अभी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सेम है, खाली फर्क क्या है, लॉग का फर्क है। देखो x टेंड टू 0, लॉग का टर्म अगर से है तो कंपलसरी यहाँ पे 1 होना। देखो सेम स्टेप था, x टेंड टू 0, x टेंड टू 0, 1 is compulsory there, 1 is compulsory there, second step। Here the difference is that यहाँ पे जो है ये x का रेसिप्रोकल होना 1 by x। तो यहाँ पे क्या है, ये जो x है, जो x के कोएफिशिएंट है वही डिनोमिनेटर में होना। जैसे यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में 1 है तो डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है। तो जब ऐसे ही तीनों कंडीशन सैटिस्फाइड है तो आंसर इज इक्वल टू कितना, 1 इज देयर। वन काउंटर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0, वन काउंटर एग्जांपल मींस ओके ठीक है, log of 1 plus 100x upon x is equal to what? It is the example. So how many steps you have to remember here? 3 steps. In the first step is that x tends to 0. Okay, and fine, कोई प्रॉब्लम नहीं। Second step, log is there, तो ये तो log में रिजल्ट यूज होगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड स्टेप ये है 1 is there, ओके 1 है, 1 भी है। थर्ड स्टेप में 100x है और डिनोमिनेटर पे कितना है, x है। अपन ने अभी थर्ड स्टेप में क्या बताया, जो x का कोएफिशिएंट रहेगा वही डिनोमिनेटर में रहेगा। इसका मतलब x के कोएफिशिएंट में 100 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 लेके ये 100 और 100 की एडजस्टमेंट, दिस 100 एंड दिस 100 we have to adjust. Why? Because the result says here the coefficient of x and the denominator are the same one. ये दोनों सेम होना तभी रिजल्ट क्या होगा, वो यूज होगा, दिस वन। इसकी वजह से यहाँ पे 100x था तो 100 और 100 के एडजस्टमेंट, ऐसा करने से ये पूरा हो गया 1। So 1 into 100 that is equal to 100 is there. So it is nothing but ये पूरा हो गया 1 into 100 that is equal to 100 is there. So it is the last result of that one. लिमिट का आखिरी रिजल्ट है। लिमिट अगर से x टेंड टू 0 की तरफ है तो log of 1 plus upon x that is equal to 1 is there. I hope you got that one. ऐसी उम्मीद है कि तुम्हारे समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला बात नहीं थी, एकदम सिंपल इज है। सबसे पहले रिजल्ट, चलो हम एक बार फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर से प्रॉब्लम देखेंगे वन बाय वन। तो रिजल्ट्स बोलो, रिजल्ट्स याद होना चाहिए सबको, और अपने स्टेप भी याद होना चाहिए, क्या क्या लाना चाहिए अपने हर स्टेप में। तो वन बाय वन देखेंगे अपन रिजल्ट्स इसकी। तो सबसे पहला रिजल्ट एक्सपोनेंशियल वाला, थोड़ा बड़ा भी लिखेंगे इसमें और अच्छे से, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कल ये लिमिट चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों से फिर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी 12th में नहीं है, ये बेसिक था इसलिए लेना पड़ा। कंटिन्यूटी हम जेई के टाइम पे लेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ये तीनों कंटिन्यूएशन में जेई में। तो लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल में पहला है, पहला रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x that is equal to log a. Very first result है ना। कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप। x 0 की तरफ जाना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को -1 देना पड़ेगा, डिवीजन में x होना जरूरी है, और इसका पावर में कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 6, तब जाके आंसर निकलना log e। इसी के बेस पे दूसरा रिजल्ट, x टेंड्स टू 0 है, e raised to x minus 1 upon x है, तो वैल्यू कितनी है, log e is there, और log e की वैल्यू कितनी रहेगी, that is equal to 1। ये तो सेकंड, सेकंड है, फर्स्ट में ये टाइप है, इसको अपन टाइप पे बोलेंगे, फिर ये दोनों सेम ही है, so I have taken first and second, only first is there। Okay, now second one, सेकंड की तरफ देखेंगे तो सेकंड रिजल्ट क्या बोलता, लिमिट x टेंड्स टू 0 की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पे जो है 1 प्लस x और इसका x का रेसिप्रोकल 1 बाय x अगर से तो वैल्यू इज इक्वल टू e is there। तो कितने स्टेप्स में भी, 3 स्टेप, x टेंड टू 0 की तरफ कंपलसरी,
1 is compulsory, और ये टर्म का रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल 1 by x is there. इतने अगर से satisfied है, value is equal to e is there. What are the steps here? X tends to 0 is there, 1 is compulsory is there, then afterward reciprocal of x is 1 by x is there, that is equal to e is there. Now last result, third one, limit x tends to 0, log of 1 plus x upon x, that is equal to 1 is there.